Hello dear students, welcome to the chemistry class. In the previous session we have discussed electrochemistry part 1 and part 2, and now we are going to discuss about the part 3. So in the part 3 what we are going to discuss just about electrolysis, electrolytic cell and electrolysis and electrolysis. So what is meant by this electrolysis? Electrolysis means what? Simple definition है the process of breaking an electrolyte, decomposition का process, the process of decomposition of an electrolyte by passing the electric current through its aqueous solution or molten state or infused state. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को करंट पास किया तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पर, ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस. The process of decomposition of an electrolyte by passing an electric current through its solution is called as electrolysis. Now let us come to discuss about how the process of electrolysis is carried. ये कैसे carry करते हैं? So here first we need to take a vessel. This is a vessel, a beaker or the vessel in which we are going to carry the electrolysis is called as electrolytic cell. Electrolytic cell बोलते क्या है? It is the vessel or the beaker in which we are carrying an electrolysis is called as electrolytic cell, or this we can call electrolytic tank, electrolytic tank, or we can call electrolytic cell. This must and should be, it is a bad conductor of electricity. It is made up of either glass से बना होते हैं glass vessel, or any other material which is a bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. Now this process of electrolysis is carried by taking an electrolytic solution in a vessel. This is known as electrolytic cell, in which the two metallic rods or metal wires, or we can call metal electrodes, metal wire, rod or simple metal plates are dipped in the electrolytic solution. ये दो metal rod है, it is dipped in electrolytic solution, and these two are connected to the terminals of a battery, to the terminals of the battery, plus and minus sign, plus and minus. Battery को connect किया है, this is minus and is plus end. Now already in the previous sessions what I have discussed, the metal electrode which is connected to the positive terminal is called as anode or cathode. देखिए एक बार यहाँ पर थोड़ा confusion है आपको. We have remembered lone. Lone means what? Lone. Left side. In the previous sessions we have discussed left side oxidation होता है. Oxidation उसको हम anode बोलते हैं. Anode which is a negative terminal. Anode को negative terminal, that is considered only in electrochemical cells, not in electrolytic cell. So ये दूसरी जगह पूरा रिवर्स से यहाँ पर देखिए, anode is positive and this is cathode है, negative terminal है, and this one is anode. So the process of electrolysis is carried by taking an electrolytic solution in a tank, in a beaker. This is known as electrolytic cell, which is made up of glass or any material which are bad conductor of electricity. And after this, now we need to
take two metal rods or metal wire or metal plates which is dipped in the electrolytic solution, and these are connected to the terminals of the batteries by using wire, connecting wire. ये जो है ये connecting wire से connect किया है. And the metal rods which is connected to the battery terminals are called as electrode. इसको हम क्या बोलते हैं? These are called electrode. इसको हम electrode बोलते हैं. These two are electrodes बोलते हैं इसको. And among these, in this, one is anode. The electrode connected to the positive terminal of the battery is called as anode, whereas the electrode connected to the negative terminal is called as cathode. Anode and cathode. तो अब तक ये तो सिंपल है. आपको एक बीकर लिया, बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एंड देन वी हैव डिप्ड टू मेटल रॉड डिप किया है, इसको बैटरी को कनेक्ट किया. इतना ही किया अभी तक. ठीक है. नाउ लेट अस पास द इलेक्ट्रिक करंट. When electric current is passed through the solution. अब देखो ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल दिया है इसको. This one is electrolytic solution. So now, for example, if AB is an electrolyte, assume करो AB is electrolyte. So electrolyte है तो ये decompose होने के बाद आपको क्या मिलेगा? A plus and B minus. These two are we can call ions बोलते हैं इसको. Ion. The positive terminal जो है उसको हम क्या बोलते हैं? Cation. And the negative species को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Anion. ये बेसिक से आपका cations and anions. That means ये जो solution है, solution के अंदर cations and anions दोनों है. It consists of cations, for example A plus and B minus, दोनों ions है इसके पास. When current is passed, current pass करने के बाद क्या होता है? When current is passed, the positive charged ions, that means cations, cations कहां पर मूव होते हैं? When current is passed, the charged ions are migrated towards, are attracted towards oppositely charged electrodes. Oppositely charged electrodes. यहाँ पर देखिए आप, कैटायन है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आएगा. यहाँ पर नेगेटिव कौन सा है? कैथोड. सो यहाँ पर cations moves towards cathode, anions moves towards anode. Here, when current is passed, cations moves towards cathode and anions are migrated towards anode. Cations to cathode, anions to anode. CAA. Cations cathode, anions anode. ये जो ions का movement है, due to by passing the electric current, ions are moving. This is known as ionic conductance, or we can call electrolytic conductance बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? Electrolytic conductance और ionic conductance. ठीक है. तो अब हम क्या किया? करंट पास किया तो ions मूव हो रहे. Ions are moving. So one is कैथोड है, एनोड है. So ions are moving. तो ions को मूव होने के बाद क्या होते हैं वहां पर? Look at this. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सा आयन है? देखिए B. तो here at anode क्या होते हैं? At anode कौन सा रिएक्शन हो रही है? एनोड कहाँ पर है? This one is anode. Anode means a positive. At anode ये जो B minus है, B minus ion which coming to the anode. एनोड के पास आ गया. आने के बाद क्या करते हैं? उसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वहां पर. सो इलेक्ट्रॉन को देने के बाद, सो दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हुआ यहाँ पर? सो ऑक्सीडेशन. एनोड तो कंपलसरी क्या होना चाहिए आपको? आपको पता है. एट एनोड मींस वहां पर प्रोसेस ऑक्सीडेशन होना चाहिए. सो बी गेट डिस्चार्ज. कैन आई से बी गेट डिस्चार्ज? क्योंकि यहाँ पर ये आयन जो है इसके ऊपर आने के बाद वो वहां पर डिस्चार्ज हो रहा है. इट गेट डिस्चार्ज. एंड ये जो B है ये न्यूट्रल स्पीसीज है. न्यूट्रल स्पीसीज. सिमिलरली एट कैथोड, कैथोड पे क्या होने देखिए? एट कैथोड, कैथोड की तरफ कौन सा है? ये प्लस. ये प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये प्लस क्या करते हैं?
ये प्लस कैटायंस कैथोड के पास आने के बाद which accept an electron and which also becomes neutral species. ये दोनों क्या हुआ? These two are neutral species बन गए neutral. So this change is known as primary change बोलते हैं इसको. ठीक है, क्या है ये? प्राइमरी चेंज. देखिए प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइज क्या हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, दो मेटल रॉड डिप किया है, बैटरी से कनेक्ट किया. कनेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस है वो आयंस माइग्रेट हो रहे हैं विच आर मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स. एक कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, एनायंस मूव्स टुवर्ड एनोड. ये जो मूवमेंट है उसको हम कंडक्शन बोल रहे हैं. आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. ये आयंस मूव होने के बाद आयंस है, कैटायंस कैथोड के पास जाके डिस्चार्ज हो रहे हैं, एनायंस एनोड के पास जाके डिस्चार्ज हो रहे हैं. दोनों न्यूट्रल स्पीसीज बन गया. When it becomes a neutral species, this change is known as primary change. Is it clear? Now we will move to the next. Once, if it becomes neutral, these two reacts with each other to form either molecules or compound, that is we call secondary change. Primary change क्या है? Ions are get discharged. First step में ions discharge हो गया. Discharge होने के बाद neutral आ रहे. न्यूट्रल आया वो क्या है? वो प्राइमरी चेंज. Whereas the neutral species reacts together and it forms either molecules or compounds, that is we can call as secondary change. Primary change and secondary change के बारे में हो गया. Is it clear? Okay, right. Next. So here ये जो इलेक्ट्रिक करंट बैटरी की यूज कर रहे हैं उसका काम क्या है यहाँ पर? सिंपल एक ही काम है यहाँ पर इसका. The current what we are using in this case, it just help to move or migrate or to direct the ions towards opposite electrode. क्योंकि करंट पास करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रोड का इसके ऊपर चार्ज आ गया. सोल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव माइनस है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है ऊपर. तो यहाँ पर सेपरेशन, डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्योंकि सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाला है AB, करंट पास करने के बाद यहाँ पर चार्ज जनरेट हो गया. तो सोल्यूशन के अंदर ये जो भी आयंस है दीज आर माइग्रेटेड टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड. देयरफॉर वी कैन से decomposed. This process of decomposition of electrolyte by passing electric current through its solution is known as electrolysis. You can note down the definition of electrolysis. इसका definition आप लिख सकते हैं यहाँ पर. definition क्या है? definition the process of decomposition of electrolyte by passing electric current through its solution is called as electrolysis. And now this is the process of electrolysis. This is the process of electrolysis. ये जो electrolysis process है it depends upon ionization theory. ये ionization theory के ऊपर डिपेंडेंट है. क्योंकि करंट पास करने के बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इट्स स्प्लिट अप होने के बाद आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. आयंस बोले तो इसके ऊपर चार्ज आते हैं आपको. चार्ज्ड स्पीसीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच माइग्रेट टुवर्ड्स or which attracted towards oppositely charged electrodes. So therefore, primary and secondary change takes place in this case. Let us consider one example. एक example consider करेंगे. So here, this example is electrolysis. ये जो process है, it is very useful in the purification techniques. Extraction and purification in metallurgy process में तो useful है यहाँ पर. Purification of copper. एक beaker है, that is electrolytic tank. This is one beaker. What I am considered in this case. Now, one electrode. This is one electrode which is made up of copper. दो electrode ले रहा हूँ मैं यहाँ पर. One is pure and other one is impure. This one is, let us take this one is a pure copper है ये. This one is pure copper and this one is impure copper. ये जो है impure है यहाँ पर. Impure copper. This is impure copper. Now these two are connected by means of a battery. एक बैटरी से कनेक्ट किया है यहाँ पर. तो बैटरी कनेक्टिंग वायर है ये. कनेक्टिंग वायर से लेके बैटरी को कनेक्ट किया. वन इज
प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये प्लस किसको कनेक्ट करना, माइनस किसको कनेक्ट करना, देखिए यहाँ पर दिस इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो क्या है ये एनोड, एनोड बोले तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, ये नेगेटिव बोले तो क्या थोड़ा ये कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड मींस रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिसॉल्व। सो जो इम्प्योर है, impure metal is made up of anode, whereas pure one is made up of cathode। यहाँ पर ये कंपल्सरी प्योर रहना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट once again we are going to explain in metallurgy topic। वहां पर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स impure metal से कैसे प्योर करते होंगे, and this is dipped in copper sulfate solution, its electrolytic solution में डिप किया, डिप। तो यहाँ पर कौन सा आयन है, Cu+2 ions are present in this case। Now when battery is connected, कनेक्ट किया तो क्या होता है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड मींस ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इम्प्योर मेटल है, कॉपर अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया ये रिएक्शन। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एज ऑलरेडी यू नो दैट कैथोड मींस वेयर द रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। रिडक्शन बोले तो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो Cu+ है ये इधर डिपॉजिट होगा, ये इधर से कॉपर आयन्स यहाँ पर इसके अंदर आ गया, और जो सोल्यूशन में है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पर। सो कॉपर आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस इलेक्ट्रोड, यहाँ पर डिपॉजिशन हो गया, और इधर का जो है स्लोली इट गेट डिकम्पोज हो गया, मीन्स इट डिसॉल्व्स। तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये डिसॉल्व हो गया, ऐसा होगा ये मेटल, कॉपर मेटल डिसॉल्व हुआ, और ये इधर डिपोजिशन। तो रिडक्शन बोले तो क्या है, कौन सा रिएक्शन है, कॉपर 2 आयंस टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव राइज टू कॉपर सॉलिड डिपोजिशन। तो इधर जो हो रही है प्योर है, और इधर इम्प्योर, जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज इसके नीचे यहाँ पर ऐसे सेटल डाउन होगा। दिस इज बी कॉल्ड एनोड मड बोल के बोलते हैं उसको, मेटलर्जी में आते हैं कॉन्सेप्ट। वन मोर टाइम, जस्ट एन इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल बोल दिया मैंने। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या है, एग्जांपल्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, लेट अस फर्स्ट स्टडी two concepts, Faraday's laws, Faraday's quantitative aspects of aspects of electrolysis। इसके बारे में थोड़ा, यहाँ पर क्या है, माइकल फैराडे he performed a large number of experiments based upon the conductance concept, and his results are summarized in the form of two laws known as Faraday's laws। तो डायरेक्टली हम हेडिंग करेंगे यहाँ पर Faraday's laws, laws of Faraday's laws के बारे में। Faraday's laws of electrolysis। Here, well known two laws of electrolysis are the first law, Faraday's फर्स्ट लॉ। क्या है यहाँ पर फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, फैराडेज फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, 2 in 1 मार्क्स को आपको कंपलसरी पूछते हैं यहाँ पर, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ। नाउ इट्स स्टेटमेंट इज, नाउ आई विल राइट फर्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, लेट W be the mass of substance deposited। यहाँ पर देखिए, suppose some x gram of copper is deposited, तो यहाँ पर some dissolve माने कितना डिसॉल्व हुआ, let's say some x gram is dissolved, यहाँ पर जो डिपोजिशन हुआ y ग्राम डिपोजिट हुआ बोल के अज्यूम करो। तो mass of substance deposited or liberated, dissolved, liberated or deposited, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, it depends upon the quantity of electricity passed। सपोज मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में मैं करंट पास नहीं किया,
तो ये रिएक्शन होता है क्या यहाँ पर? नहीं। तो अगर करंट स्टार्ट किया तो थोड़ा रिएक्शन होता है, ज्यादा करंट पास किया तो ज्यादा रिएक्शन होते हैं, राइट? थोड़ा करंट पास किया तो थोड़ा रिएक्शन, ज्यादा पास किया तो ज्यादा रिएक्शन होते हैं। तो सेम द मास ऑफ और अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अभी सिंपल वर्ड है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड, दोनों इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एनी सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed. Let's say Q with the quantity of electricity which we are passing, Q. W क्या है? Mass of substance deposited or liberated. Q क्या है? Quantity of electricity passed. तो ये दोनों क्या है? Directly proportional है. Statement you can write. Statement में लिखिए यहाँ पर क्या होता है? W means what? The amount of substance, or you can say mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of current passed through it. If you remove this proportionality symbol, Z is a constant of proportionality. This Z is a constant of proportionality called as electrochemical equivalent. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं आप? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है तो Z का डेफिनेशन चाहिए। इफ Q is equals to 1 देन क्या होता है? W is equals to Z हो गया इसका डेफिनेशन। मैं मैथमेटिकली डेफिनेशन लिख लिया तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोले तो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W व्हेन Q इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेशन कैसा? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम्स ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। 1 कूलम करंट पास किया तो जो अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो रहा है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। देखिए आंसर, 1 कूलम करंट पास किया तो कितना डिपॉजिट हुआ? सब x ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम जितना भी डिपॉजिट हुआ है, दैट वैल्यूज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सपोज 2 कूलम पास किया तो दूसरा रहता है 3x कूलम्स x ग्राम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ substance deposited or liberated at any electrode when 1 coulombs of current is passed through it. Coulombs, अब ये coulombs है, Q nothing but charge, quantity of electricity passed ये in coulombs है, coulombs में आपको पता है एम्पीयर इंटू सेकंड, so that is nothing but यहाँ पर Q is equal to क्या है? Current passed through the solution when I ampere of current passed through the solution for t seconds. When I ampere of current passed through the solution for t seconds, इसको हम coulombs बोलते हैं। So by substituting this, we can write W is equals to Z into I into T. Please note these formulas. W is equals to Q और रिलेशन, ये जो रिलेशन से याद रखिए, फर्स्ट में न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट दिस फॉर्मूला, W is equals to Z I T, or simply you can write W mass of substance is equals to electrochemical equivalent into Q, Z into Q, that is one formula, and Q is equals to I into T. Equation number 1, equation number 2, you can note these two expression because problem solving के लिए वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो शायद आपने स्टेटमेंट नोट किया होगा। देखिए स्टेटमेंट क्या है? मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट। दिस इज वी कैन कॉल क्या बोलते हैं इसको? इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या है? When 1 ampere current passed for 1 second
दैट इज 1 कूलम्स ऑफ करंट पास किया तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं लिबरेट होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं. दिस इज फर्स्ट लॉ. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. सेकंड लॉ होगा, ये कांसेप्ट क्लियर होगा तो नाउ एक सेकंड लॉ के बारे में देखिए. फैराडेस सेकंड लॉ. ओके, नो सेकंड लॉ, फैराडेस सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ हो गया वहां पर, सेकंड लॉ. सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखिए. सेकंड लॉ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में यहां पर देखिए, अगर आपके पास सपोज एक्सप्रेशन दे यहां पर, नाउ यू हैव some 3 to 4 solutions, 2 or more solution, electrolytic solution आपके पास, 2 or more electrolytic solutions you have, 2 or more electrolytic solutions. So this is an electrolytic cell. Electrolytic cell है, 2 metal rods are dipped in this. One is make positive terminal, other one is negative terminal, positive and negative. तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कौन से में किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. वन इज एनोड, एनोड लेफ्ट साइड है इसलिए इसको मैंने किया प्लस, एंड दिस वन इज कैथोड, राइट साइड को कनेक्ट किया है. सो लेफ्ट साइड तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे 2 मेटल रॉड डिप किया. हियर यहां पर आप देख सकते हैं 2 or more electrolytic solutions when it is connected, when 2 or more electrolytic solutions when it is connected in series, different है. अज्यूम कीजिए यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस लिया है, यहां पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस लिया है AgNO3, यहां पर कुछ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 taken thrice, some different electrolytic solutions I have taken. Suppose मान लीजिए यहां से मैंने जो करंट पास कर रहा हूं, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास कर रहे हैं यहां पर मैं. फ्रॉम दिस आई एम पासिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू. देखिए यहां पर डिफरेंट सोल्यूशन है, सेम करंट पास करूं मैं, ठीक है. When same quantity of electric current is passed through the different electrolytic solution which are connected in series. समझ में आया? अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को समझ में आता है, एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है. वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहता है. एग्जैक्टली ऐसा ही. When same quantity of electricity is passed through the solutions, different electrolytic solutions connected in series. अगर ऐसा है तो यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है. Amount of substance deposited are liberated at any electrode. Same statement, ऐसा ही स्टेटमेंट है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. यहां पर मैंने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट रखा है, तो अब ये W किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम रहा तो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? वो कॉन्सेप्ट सेकंड लॉ में एक्सप्लेन करूंगा. व्हेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सेम देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट. तो यहां पर डायरेक्टली मैथमेटिकल स्टेटमेंट में वर्डिंग पे लिखो. यहां पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट W1 by W2 is equals to E1 by E2. This is the second law of electrolysis, Faraday's second law. क्या है यहां पर? Substance compound 1 or 2 electrolytic solution. ये you can write AB in place of 1 and 2. You can write A and B. ठीक है. मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड. यहां पर 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज, सेम करंट पास किया तो क्या हुआ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट. उसका जितना इक्विवेलेंट है उतना ही डिपॉजिट हो जाएगा, ज्यादा डिपॉजिशंस नहीं. तो ये आपका सेकंड लॉ. लेकिन क्वेश्चन ये है, इन मॉडर्न टर्म
इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट, दिस इक्विवेलेंट वेट वी आर नॉट यूजिंग, नॉर्मेलिटी कांसेप्ट को स्किप किया है। तो इन प्लेस ऑफ इक्विवेलेंट वेट दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड को हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन दैट रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में वो रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इन्वॉल्व हुआ है उतना ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दैट। ये फैराडेज सेकेंड लॉ है, लेकिन आपको ये फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन प्रिफरेबली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट में ये दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू थोड़ा प्रीवियस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिफर्ड है आपको। तो इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। And how to solve the numerical problems on these two questions? कैसा पूछते हैं यहाँ पर, कैसा सॉल्व करते हैं, that concept we will discuss in the next sessions। यहाँ पर जस्ट फैराडेज लॉ के बारे में स्टडी किया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, हाउ इट वर्क, हाउ इट इज कैरिड, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, ये क्या होता है, पूरा का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। Based upon that electrolysis concept में Faraday's laws of electrolysis first law second law को मैंने statement दिया है, statement with simple equation। in the next session में next class में quantitative aspects of electrolysis, ये दोनों Faraday's first law and second law के ऊपर questions कैसा पूछते हैं, कैसा solve करना। अगर वो क्लास में हार्ड एक 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स होगा विथ वन एग्जांपल, या तो आप हाफ एन आवर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, पर्टिकुलरली टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दैट कॉन्सेप्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस we will discuss in the next class. Please note these two statements. Statement number 1, first Faraday's law, first law का statement, W is proportional to Q. Second law का statement, W1 by W2 is equal to E1 by E2. इसका statement नोट किया होगा आपने, if not you can note down the statement. Statement क्या है यहाँ पर, when Q constant है यहाँ पर, second law में Q constant है, when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions which are connected in series, then amount of substance deposited or liberated at any electrode, same statement with the previous one, first line is ऐसा ही, amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to, इसके ऊपर equivalent weight, is directly proportional to the equivalent weight। note कीजिए एक statement। in the next class we'll discuss about quantitative aspects of electrolysis। Thank you।